Dear students, myself Neera Sharma, the English lecturer of Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College, Muzaffarnagar. Today I am going to teach you a new lesson because new syllabus has been changed in your course. So the second lesson of this new syllabus is we are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East. Gordon Cook is a modern writer. Alan East is also a modern writer. They have written this lesson in collaboration. Gordon Cook was born in December 3, 1978 in Toronto. He graduated himself in engineering physics. The special thing about him is that he was the first Canadian to participate in Olympics. His teammate was Ben Homaker. With him, he participated in 2008 Beijing Olympics. Although they did not win the competition, but it is not the motto of Olympics. In Olympics, taking part is important, not winning. So, it was a new feather in his cap that he participated in Beijing Olympic, and he participated 2 times. His co-writer Alan East is a co-founder of a trust. The name of the trust is Central Academies Trust. So both of them are interested in writing. They are so expert in writing stories that when we read this story, we forget that it is not a true story. It appears as it is an autobiography, the experiences of the writer, but it is not. It is totally fiction. Students, you must have heard the name of James Cook, Captain James Cook of England. James Cook set sail for round the world voyage in 18th century, and he took 3 years to complete this voyage. After him, in 20th century, the same story was repeated by these writers Gordon Cook and Alan East. The narrator, the story starts in a very interesting way, as if the narrator is the writer himself and he is narrating his own experience of seafaring. He started in the same way as Captain James Cook started from Plymouth, England. The narrator, the actor or the main character of this story also started his journey from the same place and finished it on the same place as was done by Captain James Cook. This story is in itself an inspiration, as the title suggests. We aren't afraid to die if we can all be together. In short, we can say that unity is strength is the message or the inspiration, the lesson of the writer. Everybody knows if we are united, we are strong. We can face any danger. Nobody can defeat us if we are united, if we are all together. This title is a dialogue from this lesson that was spoken by his 7-year-old son, 7-year-old son of the narrator. You can imagine how brave they were. Lesson is an inspiration for all.
It gives a message that unity is always strength, bravery and courage always pay in life. The narrator of the story is a 37-year-old businessman who, along with his wife Mary, his 6-year-old son Jonathan, and 7-year-old daughter Suzanne, set sail for round the world voyage in 1976, as is given in the story. But before that, as you know that it needs a great preparation to go on sailing on the seas. There are great dangers of life, so many difficulties, there are strong winds, strong waves, they can fail everybody there. So it needs a great courage, great preparation to go for seafaring. So the narrator of the story with his wife practiced hard. He got the knowledge of sea navigation, seafaring, the engineering of all the instruments that are needed while going on the voyage. He prepared for 16 years and then he started with his son and daughter. The first lap he crossed with his very successfully, very pleasantly, 1,05,000 kilometers he crossed very easily. There was no danger in the voyage, but after that when he needed Cape Town, South Africa, he took 2 more persons with him, and because the sea, the South Indian Ocean was very dangerous. He knows that it is very dangerous and it is very difficult to cross it without expert navigators, sailors. So he took 2 other sailors with him, and then he faced a lot of difficulties. The rest of the lesson is the description of the difficulties that they faced, but ultimately they reached their target. Before the end of the lesson, not only the narrator, his wife and 2 people that he took with him from South Africa, their children showed so much courage that they boosted the narrator, the main character of the story, who was the father of these 2 children. This title is the dialogue of the 6-year-old son of the narrator, Jonathan. When they faced the dangers of life, then he told his father this dialogue, and the father boosted up, and ultimately they got success in their trip, their voyage. Now कुछ आपको हिंदी में बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या स्टोरी है, नई है बिल्कुल, इसलिए आपको हिंदी में बताना भी ज़रूरी है। गॉर्डन कुक जो कि कनाडा के एक में पैदा हुए थे 3 दिसंबर 1978 को, उन्होंने एलन ईस्ट जो दूसरे राइटर हैं, इनके कोलैबोरेशन में ये लेसन लिखा है। गॉर्डन कुक बहुत अच्छे सेलर थे खुद भी, और उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है 2008 में। उसके अलावा एक और ओलंपिक में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये जो लेसन है, इसका जो टाइटल है, ये अपने आप में पूरे लेसन की समरी है। आप ये पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा इस लेसन में क्या हो रहा होगा, कि अगर हम संगठित हैं तो हम सारे खतरों का सामना कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने, राइटर ने एक नाव बनाई। पहले तो उसके साथ उसकी पत्नी और दोनों बच्चे गए उस यात्रा पर, और उस यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने 15-16 साल बहुत तैयारी की, क्योंकि समुद्री यात्रा के खतरों को हम
इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने वहाँ पर खतरे होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, इतनी प्रचंड हवाएं चलती हैं कि आदमी वहाँ जीवित रहना संभव ही नहीं है। अगर आपको उस नेविगेशन की, समुद्री यात्राओं की, समुद्री इंजीनियरिंग की, समुद्र के एटमॉस्फेयर की, वहाँ की हवाओं की, वेव्स की, लहरों की अगर हम पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, मानचित्र पूरा चाहिए उसके लिए, सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तब जाकर हम ऐसा काम कर पाते हैं। ये उन्होंने वेव वॉकर का मैंने ये चित्र बनाया है। वेव वॉकर उस नाव का नाम था जो उन्होंने बनाई। महीनों इसकी तैयारी में लगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसे बनाने में लगे, तब उस वेव वॉकर को उन्होंने बनाया। और जब साउथ अफ्रीका वो पहुँचे 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके, वहाँ तक वो लोग काफ़ी आराम से पहुँच गए, कोई रास्ते में दिक्कत उन्होंने फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका पहुँच गए, उसके बाद जो उनका रूट था वो दक्षिणी हिंद महासागर से होकर जाना था उनको। और वो महासागर सब जानते हैं कि बहुत ही उसमें उथल पुथल रहती है हर समय, बहुत ज़्यादा खतरे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं। तो ऐसे में उन्हें अकेले ये सब झेलने में थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वहाँ से साउथ अफ्रीका से उन्होंने एक अमेरिकन और एक स्वीडन के निवासी को, सेलर को उन्होंने अपने साथ लिया और फिर आगे की यात्रा पर चले। इसके बाद की जो यात्रा है वो बहुत भयानक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरों से भरी हुई थी। और लेकिन इन सारे खतरों के बावजूद, यहाँ तक कि उनके मरने तक की नौबत आ गई थी, इतने खतरे थे, उनको चोटें लगी बहुत ज़्यादा, भूखे रहना पड़ा 2-2 दिन तक उनको। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सारे खतरों से पार किया, सबको ओवरकम किया और उन्होंने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले जब लाइफ को खतरा हुआ था, तब का ये डायलॉग है जो ये इस लेसन का इन्होंने टाइटल दिया है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आइए अब हम ये लेसन पढ़ते हैं। इसके वोकेबुलरी काफ़ी कुछ मैंने यहाँ लिखी है, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, a daughter Suzanne, 6 years old, Jonathan 6 was his son, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. जुलाई के महीने में 1976 में जुलाई के महीने में राइटर ने यहाँ से नरेटर जो बनाया है इसका पूरी यात्रा को जिसने किया है वो नरेटर अपनी पत्नी मैरी के साथ में था उसका 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन। कैप्टन जेम्स कुक ने जो परिक्रमा की थी पृथ्वी की, उसको ही वो भी रिपीट करे। तो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ उस यात्रा को दोहराने के लिए वो वहाँ से चले, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मैरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन, मैरी मेरी पत्नी और मैं जो कि उस समय 37 years का था और बिजनेस करता था, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. Famous explorer means अन्वेषक, वो जेम्स कुक जो फेमस हुए अपने इस वॉयज की वजह से। उन्हीं की तरह हम भी
उस यात्रा को दोहराना चाहते थे, उसी तरह उसमें सक्सेसफुल होना चाहते थे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और इसलिए पिछले 16 साल से मैं और मेरी पत्नी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर, जितना भी हमें अपना फ्री टाइम मिलता था, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। होनिंग मीन्स शार्पनिंग, ये इधर लिखे हैं वर्ड्स। शार्पनिंग मीन्स एक्सपर्ट होना किसी चीज़ में, अपनी क्वालिटीज़ को सुधारना, अपने अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भरना। और सी फेयरिंग मीन्स समुद्र से जुड़ी हुई सारी, यात्रा से जुड़ी हुई जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी वहाँ फैसिलिटीज़ चाहिए, जितनी परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, कैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वो बहुत सारी नॉलेज होती है। उसको पाने में हमने 16 साल लगा दिए और वो सब हमने प्रैक्टिस की ब्रिटिश वाटर्स में। ब्रिटिश वाटर्स मीन्स ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो समुद्र थे, उन समुद्रों में हमने वॉयज करके अपने आप को उस काम में एक्सपर्ट किया। Our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. Our boat Wave Walker, उसके लिए स्पेशल बोट्स बनाई जाती हैं समुद्र में जाने के लिए। ऐसी ही बोट हमने बनाई, उसका नाम दिया वेव वॉकर। ये इधर बनी है वेव वॉकर, हमने वो बोट बनाई। वेव, ये इसके नाम से ही सिग्निफाई होता है। ये क्या है? वेव मीन्स लहर और वॉकर मीन्स चलने वाली, यानी लहरों पर चलने वाली। नाम भी इतना सटीक दिया है उसका। तो वेव वॉकर नाम की वो हमने नाव बनाई जो कि 23 मीटर लंबी थी, 30 टन हल्ड ब्यूटी, और 30 टन उसका वजन था। हल्ड होता है जो मेन फ्रेम, जो इसका मेन फ्रेम होता है, पूरा लकड़ी का बना हुआ फ्रेम था वो, और एक बहुत सुंदर सी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी वो। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, चूंकि हमें जाना इतने खतरों में था तो इसलिए उस प्रोफेशन के हिसाब से हमने वो नाव को बनाया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, महीनों लगाए थे वो सारे इक्विपमेंट्स जो सी फेयरिंग में चाहिए उनको उसमें फिट करने के लिए हमने महीनों लगाए। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितने भी खराब से खराब मौसम हमें वहाँ मिला, उन मौसम में हमने सी वॉयज करके घूमकर उसका टेस्ट भी किया, ताकि हमारा जो मिशन है, जो हमारा टारगेट है राउंड द वर्ल्ड जाने का, उसमें हम फेल ना हो जाएं, हम कंप्लीट करें सक्सेसफुली। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. फर्स्ट लेग मीन्स पार्ट। लेग मीन्स वैसे तो पैर होता है, लेकिन लेग उसका पार्ट भी होता है। यात्रा का जो हमने वो पार्ट रखा था, उसमें जो पहला चरण जिसे कह सकते हैं, जो पहला चरण था वो ये पूरे 3 साल की चूंकि यात्रा थी, इसका पहला चरण जो 1,05,000 किलोमीटर का था, जिसे क्रॉस करके हम साउथ अफ्रीका पहुंचने वाले थे, केप टाउन में। तो वो जो यात्रा थी वो हमने बहुत आराम से पूरी कर ली, कोई दिक्कत नहीं आई। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ पहुँचने के बाद, इससे पहले कि हम ईस्ट साइड में, पूरब साइड में जाना था, ईस्ट साउथ इंडियन ओशन में, तो वहाँ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने 2 और क्रूमैन को, अपने दल में 2 लोग और एक्सपर्ट लोग शामिल किए। वहाँ से हमने अमेरिकन लैरी विजिल, जिसमें से एक अमेरिका के थे लैरी विजिल और दूसरे स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सीजलर थे। इन दोनों को हमने अपने दल में शामिल किया, यानी हम अब 6 people, 6 लोग उस बोट पर हो गए।
टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, ताकि वो एक्सपर्ट हैं, उनका काम है ये, ताकि वो हमें अब इस जो हम नई डायरेक्शन में जाने वाले हैं, सदर्न इंडियन ओशन में, दक्षिणी हिंद महासागर में जाने वाले हैं, वो दुनिया का रफेस्ट, सबसे उथल पुथल भरा हुआ वो ओशन है, तो वहाँ से हमें गुजरना है। इसलिए ऐसी हमने अपने साथ अपनी हेल्प के लिए 2 और सेलर्स को, एक्सपर्ट्स को अपने साथ लिया, एक अमेरिका का उनमें से था और एक स्विट्ज़रलैंड। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast. जिस दिन हम वहाँ से चले केप टाउन से, अगले ही दिन से परेशानियाँ आनी शुरू हो गई, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पता ही था। We began to encounter strong gales. Encounter means सामना करना, और gales means strong winds. बहुत तेज़ हवाएं वहाँ चलने लगी, उनका सामना हमें करना पड़ा अगले दिन से ही। For the next few weeks, और अगले कुछ हफ्तों तक लगातार they blew continuously. वो strong winds, वो तेज़ हवाएं, प्रचंड हवाएं लगातार चलती रहीं। Gales did not worry me. अब इन हवाओं की तो नैरेटर को कोई चिंता नहीं थी, उनका तो वो सामना कर सकते थे इजीली, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उन हवाओं से जो समुद्र का पानी था, उसकी लहरें थी, उनको भी फोर्स मिल रही थी और वो ऊंची ऊंची उठने लगी। अब ये जो लहरें होती हैं, ये इतनी फोर्सफुल होती हैं कि उनसे खतरा बनने लगता है। बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, और वो साइज था 15 मीटर्स हाई, यानी 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जो कि उतनी ही ऊंची थी जितना कि उसका मेन मास्ट, जो सबसे बड़ा ऊपर जो पोल होता है उसे कहते हैं मास्ट पोल। उस पोल पर ये बंधी रहती हैं पाल जिसे कहते हैं, और ये हवाओं की डायरेक्शन को बताती हैं, कंट्रोल करती हैं, उसके अकॉर्डिंग समुद्र में चला जाता है। तो वो लहरें 15 मीटर ऊंचा वो हमारा मेन पोस्ट था, उतनी ही ऊंची ऊंची वो लहरें थी। अब खतरा इसलिए बढ़ जाता है कि अगर वो पूरी फोर्स के साथ टकराएंगी मेन मास्ट में, तो वो उसको झुका सकती हैं, गिरा सकती हैं, तो इसलिए ये खतरे की बात थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. December 25 आ गया, हम जुलाई में स्टार्ट की थी हमने जर्नी, अब हम दिसंबर में पहुंच गए। 25 दिसंबर, एज यू नो, क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन, तो तब तक भी वो लोग कोई परेशानी उनको महसूस नहीं हुई थी। 25 दिसंबर को उन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया, जैसा कि क्रिश्चियंस लोग बनाते हैं। क्रिसमस ट्री बनाकर उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, सब बहुत खुश थे। A wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement. उसके बाद और 4-5 दिन बीते, न्यू ईयर्स डे आ गया, लेकिन तब भी कोई सुधार नहीं था। वो जो हवाएं चल रही थीं, जो लहरें उठने लगी थीं, वो उठती रहीं लगातार और उनको वो शांत नहीं हुई। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने अनुमान लगाया, हमने सोचा, हमें लगा कि ये जल्दी ही इसमें बदलाव आएगा, ये ठीक होंगी, शांत होंगी। बदलाव तो आया, बदली उनकी दशा, लेकिन और बुरा करने के लिए, यानी और ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठने लगी, जिनसे कि खतरा और अधिक बढ़ गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots.
As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. फिर जब खतरा बढ़ता चला गया, ये 1 जनवरी की बात आ चुकी, अब ये 2 जनवरी 2 जनवरी की सुबह, डॉन मीन्स भोर, प्रभात। डॉन वो समय होता है जब सूरज नहीं निकला होता लेकिन रोशनी हो गई होती है, दिन निकल आया होता है। सूरज निकलने के बाद मॉर्निंग हो जाती है। तो सूरज निकलने से पहले ही प्रभात के समय में द वेव्स वर जाइगेंटिक, वो जो वेव्स थी वो जाइगेंटिक मीन्स विशालकाय, दैत्याकार, बहुत ही अधिक ऊंची ऊंची लहरें, स्ट्रॉन्ग विंड्स, पावरफुल विंड्स वो हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हमने केवल एक छोटी सी जिब होती है, एक ट्रायंगुलर स्मॉल ट्रायंगुलर मास्ट होता है, छोटी तिकोनी पाल होती है, वो भी सी को डायरेक्शन देने के लिए लगाई जाती है। हमने केवल वो लगा रखी थी और उसको लगाकर हम 8 नॉट्स के हिसाब से चल रहे थे। नॉट्स इज ये लिखा है नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स होता है मील, जैसा कि हम सड़क पे जाते हैं तो उसको डिस्टेंस को नापा जाता है मील से। समुद्र में भी हम डिस्टेंस होता है तो उस डिस्टेंस को नापने के लिए नॉट्स वर्ड है, ये समुद्री मील कहलाता है। यानी 1 घंटे में 8 मील समुद्री मील के रफ्तार से हम लोग जा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वेव्स इतनी पावरफुल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमारा शिप, जो हमारी वो स्ट्रॉन्ग बोट थी वेव वॉकर, वो भी लहरों के साथ इस तरह जा रही थी। उसके ऊपर पूरी फोर्स के साथ वो बोट चलती जा रही थी।